Assalamu alaikum, my dear brothers and sisters. Hello. Please share the link, joining link in my WhatsApp group so that everyone can join with this link. Join fast. Good evening. Very good evening. Are you hearing my voice properly? Are you getting me? Friends? Yes. Anyone send the link in the WhatsApp group? Please share the link to my WhatsApp group so that everyone can join through. At 7:30 we will start. Yes, so we are on the 7th question. Write the principle and procedure of the gram staining. Gram staining principle and procedure. Very important lecture. Today's lecture. Here we will discuss all the remaining questions. Okay. That is the 7, 8, 9, 10, 11, 12. We will cover those. Only 4 to 5 minutes are remaining. Please join faster. Send the link to your friends so that they can also join the video and enjoy the taste of the content. Three minutes are remaining. Sharp 7:30 we will start our lecture. Two minutes are remaining. Join fast. Only 1 minute remaining. Yes. Assalamu alaikum, my dear brothers and sisters. Welcome you all to my YouTube channel, Let's Join Pharmacy. I am here today to discuss about the question number 7. That is the right principle and procedure of the gram staining. Okay, gram staining, very important question. It is many times this question was asked in the examination. Now, see, let's discuss the answer for this.
they will ask directly about the gram staining, or sometimes, okay, sometimes they will ask identification of the bacteria. Give different methods to identify the bacteria. आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया के मेथड्स को देना है, किस तरह से आप बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. बेसिकली देखिए दोस्तों, दो तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. वन इज सिंपल स्टेनिंग, अनदर वन इज डिफरेंशियल स्टेनिंग. हाँ, दो तरह के इससे हम नाउ सिंपल स्टेनिंग हम अगर पूछा है तो करेंगे. हियर मेन इंपॉर्टेंट इज द डिफरेंशियल स्टेनिंग. देखिए दोस्तों, डिफरेंशियल स्टेनिंग के अंदर अगेन दीज आर क्लासिफाइड एज द ग्राम स्टेनिंग एंड एसिड फास्ट स्टेनिंग. okay, gram staining and acid fast staining. Now in this lecture particularly we will discuss about the gram staining technique of the bacteria. okay, this technique was developed by Dr. Hannes Christian Gram. This is useful to differentiate staining procedure in bacteriology. What the importance of this gram staining means? To stain the bacteria means we are staining here. Why? For what reason we are staining? Definitely to study their morphology we are staining here. It helps to study the morphology of the gram positive and the gram negative bacteria. See here, this gram staining technique ये जो है ना दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये दोनों के लिए, ओके, ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल बैक्टीरिया के लिए भी और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए भी, दोनों तरह के बैक्टीरिया को हम स्टडी कर सकते हैं इन ग्राम स्टेनिंग से. वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक है. हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक है. नाउ द टेक्निक इन्वॉल्व इन 6 बेसिक स्टेप्स. देखिए ये जो प्रोसीजर है ना, दीज फॉलोज इनटू द 6 स्टेप्स. 6 स्टेप्स के अंदर ये प्रोसीजर फॉलो होता है. द फर्स्ट वन इज स्मीयर प्रिपरेशन. अगर हम ये स्मीयर प्रिपरेशन की बात करेंगे तो जो आपका स्लाइड रहता है ना, दैट्स नोन एज अ स्मीयर. स्मीयर हीट फिक्सिंग ऑफ द स्मीयर मीन्स what we have to do before transferring the species or before transferring the sample, we have to heat fix it. Why to heat fix means? Because to kill the microorganisms present there. okay, if the microorganisms already present on the sphere means to kill those microorganisms we are heat fixing. We are killing the microbes, we are deactivating the activity of the microbes by heating on the Bunsen burner or on the flame. Now staining with the crystal violet. First what we have to do, we have to prepare a smear. That smear should heat fix of the smear means not clear visible of nodes. Yes. Now see, smear preparation means we are preparing the slide. okay, that slide first it should be heated because to kill the microorganisms. Then what we have to do means we have to place the required sample to which we want to morpholize or we want to study, that we have to fix on that which one we have to fix that on where in this slide. Then what we have to do, we have to heat fix it again. Once again we have to go through the Bunsen flame. Why means to deactivate the activity of these species also we have to kill those all. Now then staining with the crystal violet. First procedure, that is a primary stain. Crystal violet we have to stain the which one, this species or the sample with the crystal violet. Then use of iodine. After that we have to use the iodine means we have to wash that violet after 5 to 6 minutes. Then we have to use iodine. I will discuss in the procedure that later. Then treatment with the acetone alcohol mixture. It is a decolorizing agent. okay, it plays a vital role. We will discuss that also in the procedure. Use of a saffron, it is a counter stain. okay, then the air dried fixed smear when treated with the crystal violet and iodine, they retains the stain even after application of the decolorizing agent. okay, means माफ करिए, ये विजल का साउंड है, खाना पक रहा है. या हाँ, द एयर ड्राइड फिक्स्ड स्मीयर, जो स्मीयर मैंने आपको दिखाया था ना, व्हेन ट्रीटेड विद दिस क्रिस्टल वैलेट आयोडीन, इफ द स्टेन रिटेन्स आफ्टर द डिकलराइजिंग एजेंट, अगर हम अल्कोहल डालने के बाद भी स्टेन्स उधर मौजूद रहे, ओके, देन द बैक्टीरिया, if that decolorizing agent, my dear brothers and sisters, if that decolorizing agent
Okay, is a decolorizing agent. If that decolorizing agent will not erase the crystal violet of iodine, मतलब ये जो crystal violet और iodine हम इस्तेमाल किया है ना, अगर उनका कलर at that time that bacteria is gram positive, dark violet आपको जाएगा ना, हाँ, where the bacteria do not retain the primary stain, अगर वो stain नहीं रहा, then they will disappear the color while addition of the decolorizing agent, that is alcohol, and attains the pink color, means at that time that bacteria is gram negative. You remember only this concept. Are you getting? Yeah, resulting in the why this property of gram positive and gram negative means, see here pore formation in the cell wall facilitating the leakage of the crystal violet iodine and resulting in the decolorization of the gram negative bacteria, which takes saffron and the red appears. Means simple आप समझिए दोस्तों, देखिए what happens, these are the cells of the gram, these are the cells of the gram negative. Now what happens, these gram negative cells contains the porous medium. Okay, when you add the required stains, means through this porous medium those stains will be leakages, they get out, so the bacteria won't accept those stains, and they are, if they not accept the stains means how can they colorize, अगर वो कलर ही नहीं हो सकते ना, अगर स्टेन नहीं लिया तो नहीं कलर हो जाएंगे, अगर उन्होंने स्टेन ले गए तभी वो कलर होंगे, if they are not then they cannot acquire the stain, my dear brothers and sisters. This is the concept. Why? Because of the porosity in the gram negative porosity. Okay, so they doesn't acquire the color, they turns into the pink after we addition of the saffronin. If we discuss in the gram positive means what happens, they doesn't having any porous property into their cell wall, cell nature is not in porous medium, so they will receive the stains and changes into the violet color. Okay, violet color. This is the difference between gram positive and gram negative. Okay, then procedure, make a smear of a given culture on a clear glass slide, means जैसे कि हमने बताया था smear हमें prepare करना है, then air dry the smear and heat fix it. heat fix हमें उनके वो जो smear दे रहता है ना उसे हमको heat fix करना है, मतलब smear लेके उसके ऊपर, this is the smear, इसके ऊपर जो है ना जो सैंपल लेना है वो सैंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सैंपल लेके इसको हमें हीट करना है टू किल दिस एक्टिविटी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. देन कवर द स्मीयर कंप्लीटली विद द क्रिस्टल वायलेट एंड लीव द स्टेन ऑन द स्लाइड फॉर 1 मिनट. इसके बाद हमें क्या करना है, इस स्टेन पर इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर फर्स्ट हम क्रिस्टल वायलेट डालेंगे, फिर 1 मिनट के लिए उसको छोड़ देंगे, वी विल लीव फॉर 1 मिनट. देन वॉश द स्लाइड जेंटली इन डिस्टिल वाटर, इस स्लाइड को हम जेंटली टैप वाटर के अंदर वॉश करेंगे, एकदम फास्ट नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे से वॉश करेंगे. देन फ्लड द स्मीयर विद ग्राम्स आयोडीन फॉर 1 मिनट. जब क्रिस्टल वायलेट ऐड होने के बाद उसको वॉश करेंगे, फिर हम आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे, ग्राम्स आयोडीन सोल्यूशन. देन फिर हम उसको टैप वाटर के साथ स्लोली जेंटली वॉश करेंगे. ओके, देन ऐड अल्कोहल सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप अंटिल द स्मीयर बिकम्स फ्री फ्रॉम कलराइजेशन. हमें अल्कोहल को ऐड करते जाना है दोस्तों. ओके, ऐड करते जाना है. देन वॉश द स्लाइड जेंटली अंडर रनिंग टैप वाटर, फिर हमें वॉश करना है स्लाइड को. देन अभी लास्ट जो प्रोसेस है ना, हम काउंटर स्टेन ऐड करेंगे इधर. विच वन इज द काउंटर स्टेन? सैफ्रनिन. सैफ्रनिन पिंक कलर रहता है दोस्तों, पिंक कलर. नाउ वॉश अगेन एंड ब्लॉट ड्राई विद द ब्लॉटिंग पेपर एंड ऑब्जर्व अंडर द ऑयल इमर्स ऑब्जेक्टिव लेंस. और डायरेक्टली आप माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हो, जैसे कि आपने इधर देखा है. देखिए, स्मेयर को हमने प्रिपेयर किया, हीट फिक्स किया, देन क्रिस्टल वायलेट को इसमें ऐड किया, क्रिस्टल वायलेट को वॉश किया. then again we have to flood with iodine solution for 1 minute. then again we have to wash, डिकलराइज करेंगे by adding the अल्कोहल को, फिर वॉश किया, फिर काउंटर स्टेन डालेंगे, फिर वॉश करेंगे. एक्सेस अमाउंट ऑफ द सैफ्रोनिन अगर होगा तो स्लाइड के ऊपर, देन वी विल, हम उसको क्या करेंगे, रब कर डालेंगे, मतलब हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द ब्लॉटिंग पेपर. देन वी हैव टू ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप. अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, देन वी विल ऑब्जर्व द सेल्स. मैंने आपको बताया है, इफ द सेल्स आर ब्लू और ब्लू इन नेचर, देन दोज आर ग्राम पॉजिटिव. व्हाई? बिकॉज ड्यू टू द नो porosity inside the gram positive cell wall, they acquire the stain and turns into red color. Sorry, not red, violet color. If they doesn't
समझ में आ रहा ना मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों? ग्राम पॉजिटिव जो है ना, पोरोसिटी नहीं रहती इसके, इनके अंदर क्या रहता है, पोरोसिटी नेचर नहीं रहता है, लीकेज नहीं रहता है। उसी तरह ग्राम नेगेटिव क्या है, ये जो है ना ये लीक करता है। क्रिस्टल वालेट आप डालेंगे तो ब्लू कलर का, ये लीक करके वो जो स्टेन रहता है ना, रीस्टेन प्रॉपर्टी शो नहीं करता। इसलिए जब हम काउंटर स्टेन सैफ्रोनिन को डालेंगे ना, सो वो सैफ्रोनिन क्या करता है, उसके ऊपर ऊपर ही लगे रहता है ऐसा ही, क्योंकि ऊपर ऊपर ही लगे रहता है। सो दैट्स रीजन दिस ग्राम नेगेटिव सेल वाज टर्न इनटू रेड और पिंक इन कलर, लाइट और डार्क पिंक। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन टेक्निक ऑफ द बैक्टीरिया। अगर आइडेंटिफिकेशन 5 मार्क्स में पूछेंगे तो सिर्फ आप ग्राम स्टेन, you can clear your doubts here. So my dear brothers and sisters, write principle and procedure of gram staining. Is there any doubt here? If no means let's move towards the next question. Involved in the steps involved in the replication of the virus replication. Very important question asked many times in your examination. We will discuss that replication. Wait 2 minutes, just I am removing the notes for that. जैसे आप, मैं नोट्स निकाल रहा हूँ उस वायरस का। आप मुझे ये बताइए दोस्तों, व्हाट इज द वायरस? वायरस इट इज, दीज आर द ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट ये है ना, ये पैरासाइट्स है, जैसे कि कोरोना वायरस, ओके, कोरोना वायरस, जिका वायरस, दीज ऑल आर द ऑब्लिगेट पैरासाइट्स which will depend on the human beings. ह्यूमन बीइंग के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं फॉर देयर कल्टीवेशन पर्पज, फॉर देयर ग्रोथ पर्पज। हाँ, ह्यूमन बीइंग के ऊपर ये डिपेंड रहते हैं। नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, जैसे कि लिविंग कंपोनेंट्स के ऊपर इनका बहुत दबदबा रहता है। दिस इज द एनवलप्ड वायरस, जैसे कि एक वायरस है। नाउ द क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों, रेप्लिकेशन ऑफ द वायरस। स्टेप हमें लिखना है, बेसिकली डायरेक्ट हम स्टेप्स लिख डालेंगे। फर्स्ट वायरस लिखना है आपको। व्हाट इज द वायरस? दीज आर द ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। रेप्लिकेशन ऑफ वायरस, ड्यू टू द lack of a biosynthetic enzymes, virus replicate by utilizing biochemical machinery of the host cell। मतलब इधर क्या होता है दोस्तों, वायरस के अंदर जो है ना बायोसिंथेटिक एंजाइम्स नहीं रहते दोस्तों। जो एंजाइम्स उन्हें चाहिए, मतलब जो प्रोटीन को प्रिपेयर करने के लिए हमें बायोसिंथेटिक एंजाइम की ज़रूरत है, जैसे कि हमको अमीनो एसिड को प्रिपेयर करने के लिए उनकी ज़रूरत है। इधर क्या रहता है वायरस के अंदर, दे लैक्स दैट एंजाइम। सो उन लोग, ये वायरस है ना बड़े बदतमीज़ होते हैं, ये है ना होस्ट सेल के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, क्योंकि होस्ट सेल हम ही है, एनिमल्स है। तो होस्ट सेल हर एक तरह की चीज़ें उनको प्रोवाइड करता है दोस्तों। हाँ, हर एक तरह की चीज़ें, खाना पीना, बायोसिंथेटिक प्रॉपर्टीज़ उनका देता है। लास्ट में ये जाते समय हमको चूना लगा के चले जाते हैं, कहीं कौन सा भी एक वायरस डाल के, पोलियो वायरस, कोरोना वायरस, जिका वायरस, हाँ ऐसा वायरस डाल के चले जाने का, हमारे हमको एक बोझ बना के चले जाएंगे ये लोग। हाँ, ऐसा इनका स्वभाव है। यस, नाउ द रेप्लिकेशन डिवाइडेड इनटू 6 सीक्वेंशियल स्टेप्स। वेरी इंपॉर्टेंट है 6 सीक्वेंशियल स्टेप्स, रिमेंबर करना है आपको। फर्स्ट वन इज एड्सॉर्प्शन स्टेप, एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्ब होते हैं। देन पेनेट्रेट, पेनेट्रेशन, अनकोटिंग, बायोसिंथेसिस, एंड लास्ट इज फिफ्थ वन इज वायरन असेंबली, रिलीज। ये 6 स्टेप्स आपको वेरी इंपॉर्टेंट आपको समझना है, समझाऊंगा मैं, टेंशन मत लीजिए। फर्स्ट वन इज एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन मतलब अटैचमेंट। समझते हैं इन अटैचमेंट का मतलब क्या है। इट इज द फर्स्ट इवेंट इन एनी वायरल इन्फेक्शन इन विच द वायरस कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द सेल्स बाय रैंडम कोलिजन एंड गेट अटैच टू द सेल्स। देखिए दोस्तों, सिंपल है। देखिए, ये एक ह्यूमन बीइंग है। नाउ दिस, ये ह्यूमन बीइंग क्या करता है, छींक मारता है, मतलब ही स्नीजेस। इसके अंदर जो वायरस रहते हैं ना दोस्तों, दीज वायरस, ये जो वायरस रहते हैं ना, हाँ, दीज ड्रॉपलेट्स कंटेन्स द वायरस। दीज वायरस व्हाट दे विल डू, दे विल स्ट्राइक विद द ह्यूमन, टोटली ह्यूमन एनिमल बॉडी के ऊपर स्ट्राइक करते हैं। स्ट्राइक करके ये एनिमल बॉडी के ऊपर अटैच हो डालते हैं दोस्तों, एड्सॉर्ब हो डालते हैं। ओके, देन रैंडम कोलिजन होके एंड गेट अटैच टू द सेल्स। दिस एड्सॉर्प्शन इज स्पेसिफिक एंड डिपेंड्स ऑन द सरफेस ऑफ द रिसेप्टर्स ऑफ होस्ट सेल। देखिए, तरह तरह के एड्सॉर्प्शन रहते हैं दोस्तों। चंद एड्सॉर्प्शन स्पेसिफिक रहते हैं, मतलब होस्ट सेल्स के ऊपर ही डिपेंड रहता है।
इफ द होस्ट सेल्स आर गुड इन नेचर, मतलब जो एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी उनके अंदर अच्छा पाया गया तो बहुत तुरंत ये वायरस एब्जॉर्ब हो डालेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ। एनिमल वायरस हैव स्पेशलाइज्ड अटैचमेंट साइट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द वायरन। जो एनिमल वायरस है ना, जो हाँ एनिमल वायरस, इन वायरस के अंदर एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ द अटैचमेंट रहता है। दिस इज द एनिमल वायरस। फॉर एन एग्जाम्पल, ये जो स्पाइक जो आपको नजर आ रहे हैं ना, स्पाइक, दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ द अटैचमेंट। दीज विल गो एंड अटैच टू द सेल वॉल ऑफ द सरफेस ऑफ द ह्यूमन और द एनिमल। ये जो है ना स्पाइक्स, हाँ, ये जाके पकड़ डालते हैं सेल को, ऊपर के सरफेस एरिया को। ओके, जगड़ के पकड़ो, ऐसा एड्सॉर्प्शन। ये फर्स्ट स्टेप हो गया अटैचमेंट का। नाउ फॉर एन एग्जाम्पल वी आर गिविंग योर एग्जाम्पल ऑटोमायोक्सोवायरसेस एंड पैरामायोक्सोवायरस अटैच्ड थ्रू ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स। यहाँ हाँ मैंने आपको बताया था स्पेशल अरेंजमेंट रहता है। फिर देखो ये दो पैरामायोक्सोवायरस और ऑटोमायोक्सोवायरस, इनके जो स्पाइक्स रहते हैं ना वो ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स है, ग्लाइकोप्रोटीन स्पेशल अटैचमेंट है। नाउ द नेक्स्ट वन, व्हाट इज दैट? पेनेट्रेशन। सी माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पेनेट्रेशन मीन्स जस्ट क्या है? पेनेट्रेट मतलब आर पार होना, बॉडी से आर पार होना, उसे क्या बोलते हैं? पेनेट्रेशन करते हैं। पेनेट्रेशन ऑफ द वायरसेस अकर्स आइदर बाय engulfment of the whole virus or by fusion of the viral envelope with the cell membrane, allowing only the nucleocapsid of the virus to enter the cell। समझिए आप इन सेंटेंस को समझिए। देखिए दिस इज द एनिमल बॉडी। जैसे कि देखिए ये एक हमारा बॉडी है, ये बॉडी है हमारा ह्यूमन बीइंग का, ये बॉडी है ह्यूमन बीइंग का। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज द वायरस। दिस वायरस कंटेन्स द ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स। नाउ पेनेट्रेशन इस तरह से होता है दोस्तों। हालांकि पेनेट्रेशन देखिए जैसे कि होल बॉडी भी पेनेट्रेट कर सकती है ह्यूमन बीइंग के अंदर, होल बॉडी, या इसका जो कवरिंग रहता है ना, जो कैस्पिड रहता है ना, कैस्पिड, हाँ, सिर्फ वो कैस्पिड भी एंटर कर सकते हैं। द होल बॉडी ऑल्सो एंटर्स इनटू द ह्यूमन बीइंग और ओनली द आउटर कवरिंग कैन ऑल्सो भी एंटर्स इनटू दिस ह्यूमन बीइंग। ओके, और द न्यूक्लियस मीन्स जो मैसेंजर रहता है ना, इसके अंदर भी एक न्यूक्लियस रहता है। न्यूक्लियस कंटेन्स द मैसेजेस, दीज न्यूक्लियस कैन ऑल्सो भी एंटर इनटू द ह्यूमन बॉडी। ओके, ये पेनेट्रेशन प्रोसेस है, आर पार होना सेल वॉल से। नाउ अनकोटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स द फिजिकल सेपरेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम इट्स आउटर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। यार क्या होता है दोस्तों, न्यूक्लिक एसिड जो रहता है ना इनसाइड एयर, जो न्यूक्लियस एसिड रहता है ना, वो न्यूक्लिक एसिड क्या करता है? बाहर आता है दोस्तों। ओके, ये न्यूक्लिक एसिड बेसिकली कोटिंग में रहता है। ये एक कोट, इसे एक कोटिंग दिया जाता है दोस्तों, क्योंकि फ्रॉम द अटैक ऑफ द डिफरेंट वायरसेस से बचाने के लिए इसे कोटिंग दिया रहता है न्यूक्लिक एसिड को। इन न्यूक्लिक एसिड को अनकोट, ये कभी होते हैं अनकोट? व्हेन दे पेनिट्रेट इनटू द होस्ट, एट दैट टाइम ओनली दे गेट अनकोटेड एंड दे रिलीज इनटू द ह्यूमन ब्लड। ओके, ह्यूमन ब्लड। It is assumed that host components, notes not clear, my dear brother, just understand the concept, notes not clear, okay, just understand the concept, inshallah I will upload the notes in the description. Now it's clear? Yes. Uncoating, the second point we will see that what is that second point. It is assumed that host components means we and the proteolytic enzymes within the lysosomes cause the uncoating process। ये देखिए दोस्तों, ये जो हम लोग होते हैं ना, हाँ, ये हम ही लोग इन्हें वायरस को मदद करते हैं। हम ही लोग इन्हें, जैसे इनका अनकोटिंग प्रोसेस करना, अनकोटिंग मतलब न्यूक्लिक एसिड को बाहर निकालना, ये हम ही लोग से किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम लाइसोसोम्स एंड प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। हम ही लोग कहते हैं दोस्तों। ओके, in adenoviruses, paraviruses, uncoating is accomplished by the cellular proteases present in the cytosol, but in miscellaneous चंद miscellaneous वायरसेस के अंदर, जैसे कि एडिनोवायरस और पैरवोवायरस, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? अनकोटिंग प्रोसेस सेलुलर प्रोटीएसेस के द्वारा हो जाता है दोस्तों। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज बायोसिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, बायोसिंथेसिस। आफ्टर अनकोटिंग the viral genome, it directs the biosynthetic machinery of the host cell to produce the viral components। देखिए दोस्तों, अनकोटिंग ऑफ द वायरल जीनोम, अनकोटिंग होने के बाद में
इट डायरेक्ट्स द बायोसिंथेटिक मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू प्रोड्यूस वायरल कंपोनेंट। आपको मैं ये पॉइंट समझाता हूँ। देखिए ये जो है ना, ये ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर बहुत सारे बायोसिंथेटिक प्रोसेस होते रहते हैं, बायोसिंथेटिक मशीनरी रहते हैं। ये जो होस्ट सेल है ना, ये होस्ट सेल मतलब हम लोग इनका सभी बायोसिंथेटिक प्रोसेस को आसान कर देते हैं। ओके, ये जब वायरस जैसा बॉडी के अंदर एंटर होता है, वो अनकोटिंग होने के बाद ओके वो क्या करता है, जाके बायोसिंथेटिक मशीनरी के पास बैठ जाता है। मतलब ई गोज एंड एक्वायर द बायोसिंथेटिक मशीनरी ऑफ द होस्ट। देन व्हाट हैपन्स, थोड़ी थोड़ी देर के बाद में ये बायोसिंथेटिक मशीनरी उनका काम कर देते हैं। मतलब जो वो किसी मकसद से आए रहते हैं ना, जैसे कि रेप्लिकेशन, वो उनका काम कर देते हैं। कौन? होस्ट सेल, बायोसिंथेटिक। हमारे जो मशीनरी रहता है ना, मेटाबॉलिज्म, अनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, ये सभी हमारे बॉडी से होता है। In general, the nucleic acid genome of the most of the DNA viruses are synthesized in the host cell nucleus only। देखिए, अरे भाई गजब हो गया। चलिए देखिए, डीएनए वायरसेस जो रहते हैं ना, ये हमारे से सिंथेसाइज होते हैं। हाँ, हम ही इन्हें पूरे 90% मदद करने वाले भी हम ही हैं। लास्ट को कोरोना वायरस को गाली देने वाले भी हम ही हैं। सब कुछ हम ही करते हैं। पाप उन बेचारों को गाली भी देते हैं और उन्हें मदद भी करते हैं। ऐसा है, समझिए कॉन्सेप्ट को। देन एक्सेप्शन ऑफ द पॉक्स वायरस सिंथेसाइज मीन्स स्मॉल पॉक्स। इसके अंदर क्या होता है, ऑल देयर कंपोनेंट्स इन द साइटोप्लाज्म के अंदर ही सिंथेसाइज हो जाता है इधर। ओके, विच एक्सेप्ट पॉक्स वायरस। इनिशियली वायरल डीएनए इज रिलीज्ड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द होस्ट सेल टू ट्रांसफर्ड इनटू एमआरएनए। देखिए दोस्तों, जब डीएनए रेप्लिकेट होता है ना, स्टार्टिंगली वायरल डीएनए रिलीज इनटू द न्यूक्लियस, होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर ही रिलीज होता है। देन उसको मैसेंजर आरएनए के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। देन ट्रांसलेटेड टू द न्यू वायरल प्रोटीन। ओके, जैसे कि हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ द डीएनए, कैसा एक न्यू डीएनए प्रोड्यूस होता है विद हेल्प ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन फॉर्म होता है। ओके, प्रोटीन फॉर्म होता है दोस्तों। इसी तरह इधर क्या होता है, वो जो प्रोटीन फॉर्म हो रहा है ना, दैट प्रोटीन गेट फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द वायरल डीएनए। फॉर एग्जांपल आपको समझाता हूँ मैं, ये पॉइंट को आपको समझाता हूँ। देखिए ये जो है ना वायरल डीएनए, ये वायरल डीएनए क्या करता है, दिस गो इनटू द बायोसिंथेटिक प्रोसेस, चला गया। ये क्या करता है वायरल डीएनए, ये ट्रांसफर्स होता है एमआरएनए को, मैसेंजर आरएनए को। ओके, मैसेंजर आरएनए विल ट्रांसफर टू द न्यू प्रोटीन। ये वायरल प्रोटीन है, वायरल डीएनए। ओके, जब तक बॉडी को नहीं पता चलता, किस लिए बॉडी को नहीं पता चलता, क्योंकि दीज वायरल जो न्यू प्रोटीन्स आर देयर नो, दे रिजेंबल्स द सेम स्ट्रक्चर्स विद द ह्यूमन। हाँ, सेम स्ट्रक्चर्स, ह्यूमन के जैसे स्ट्रक्चर्स रहते हैं ना प्रोटीन के, उन्हीं तरह के स्ट्रक्चर से रिजेंबल करते हैं। ओके, देन सो दे इन्वॉल्व इन द सिंथेसाइज ऑफ द मल्टीपल कॉपीज ऑफ द वायरल डीएनए। रेप्लिकेट होते हैं, मल्टीपल कॉपीज को प्रिपेयर कर लेते हैं हमारे बॉडी के अंदर। बाय दिस वे बायोसिंथेसिस ऑफ द वायरल प्रोटीन अकर्स। इसी तरह से बायोसिंथेसिस हो जाता है। इन केस ऑफ सम आरएनए वायरसेस, दैट इज पिकोरना वायरस, स्टेज इन द साइटोप्लाज्म वेयर इट मीडिएट्स इट्स ओन रेप्लिकेशन एंड ट्रांसलेशन इनटू वायरल प्रोटीन। देखिए जैसे कि पिकोरना वायरस ये है ना, ये जो सब अपना काम अपने आप कर लेते हैं। ओके, अपना काम अपने आप कर लेते हैं, मगर ये जो वायरस है ना, ये ह्यूमन के अंदर आके अपना काम करते हैं। वाई? बिकॉज दीज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स नो, इनका रेप्लिकेशन या ट्रांसलेशन अपने आप करते हैं, मगर दीज विल टेक द होस्ट सेल, होस्ट इनको ज़रूरी है दोस्तों। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ वायरन असेंबली। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। असेंबली मतलब जो असेंबल रहता है ना, मौजूद होने का। हाउ? असेंबली ऑफ द वायरल वेरियस वायरल कंपोनेंट्स इनटू द complete virus particles occur shortly after replication of the DNA, viral nucleic acid, and may takes place in the cytoplasm or nucleus। देखिए आफ्टर द रेप्लिकेशन, ओके, बायोसिंथेसाइज का नेक्स्ट स्टेप ही ये है, कौन सा? वायरल असेंबली। ओके, बायोसिंथेसाइज का नेक्स्ट स्टेप कौन सा है? वायरल असेंबली। या रेप्लिकेशन होने के बाद तुरंत ही ये जो है ना, दे टेक आफ्टर मीन्स ये असेंबल हो जाते हैं कंप्लीट इनटू कंप्लीट वायरस पार्टिकल that should be take place in the cytoplasm or in the nucleus. The capsomere proteins enclose the nucleic acid to form the viral nucleocapsid। जो मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो न्यूक्लियस रहता है ना वायरस का, दे कोटेड बाय द कैप्सोमियर प्रोटीन।
ओके, कैप्सोमेर प्रोटीन, ये जो है ना ये असेंबली स्टेप में ही हुआ जाता है। नाउ द लास्ट स्टेप ऑफ द रेप्लिकेशन ऑफ द वायरस इज द रिलीज। सब काम हो गया, अभी जाने का क्या बचा है, वी विल रिलीज। इट इज द फाइनल इवेंट इन वायरल रेप्लिकेशन, हियर इट रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ द मैच्योर वायरॉन्स फ्रॉम द होस्ट सेल। जैसे कि सभी हो गया, रेप्लिकेट भी हो गया, कोड भी बन गया, देन वी विल लीव द वायरस। ओके, वी विल लीव द वायरस, सॉरी वी विल लीव द होस्ट सेल। वायरस मैचुरेशन एंड रिलीज अकर्स ओवर कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। देखिए ये बहुत शॉर्ट पीरियड में वायरस रिप्लिकेट हो जाते हैं, बहुत शॉर्ट पीरियड। नेक्ड वायरस में लाइसिस ब्रेकडाउन ऑफ द होस्ट सेल विदाउट डैमेजिंग द होस्ट सेल, एक्सेप्शन ऑफ द पोलियो वायरस रिलीजिंग बाय डैमेजिंग द होस्ट सेल। ओके, देखिए सभी वायरसेस खराब नहीं रहते दोस्तों। चंद वायरसेस जो रहते हैं ना ह्यूमन बॉडी को विदाउट हार्म किए बगैर वो जा जाते हैं, दे विल रिलीज। बट सम वायरस दे विल हार्म द ह्यूमन बॉडी, मीन्स वो सेल्स को लाइस करते हैं, ब्रेक करते हैं। ओके, जिसके कारण हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिक्रीज हो जाता है दोस्तों। इन केस ऑफ एनवेलप्ड वायरस, द न्यूक्लियोकैस्पिड एक्वायर्स इट्स फाइनल एनवेलप फ्रॉम द न्यूक्लियर और द सेल मेम्ब्रेन बाय बडिंग ऑफ प्रोसेस बिफोर रिलीज्ड आउट टू द होस्ट सेल। मतलब जो इन केस ऑफ द एनवेलप्ड वायरस रहते हैं ना दोस्तों, इनके अंदर क्या रहता है, बडिंग प्रोसेस से बाहर चले जाते हैं वायरस। ओके, दीज आर द 6 इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन द रेप्लिकेशन ऑफ द वायरस। जैसे कि मैंने आपको डायग्राम दिखाना है इधर, यस यू हैव टू राइट दिस डायग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस डायग्राम ओनली गिव्स यू मैक्सिमम मार्क्स। फर्स्ट वन इज अटैचमेंट, ओके, देन इज पेनेट्रेशन, अंदर जा रहा है, देन कोटेड वेजल, जो कोट है ना कोटिंग, देन द नेक्स्ट प्रोसेस इज अनकोटिंग। ओके, जो देखिए आपको जैसे कि इधर देखिए स्पाइक्स नज़र आ रहे हैं, इधर देखिए स्पाइक्स नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये अनकोटिंग प्रोसेस हो रहा है, घट रहा है। अनकोटिंग के बाद ही क्या आता है दोस्तों, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के अंदर क्या होता है, डीएनए दैट इज कन्वर्टेड इनटू द मैसेंजर के अंदर कन्वर्ट होता है, दैट मैसेंजर आरएनए इज कन्वर्टेड इनटू द न्यू प्रोटीन। न्यू प्रोटीन फॉर्म हो रहा है दोस्तों, न्यू प्रोटीन इज फॉर्म्ड हियर। देन कैस्पिड असेंबली, फिफ्थ प्रोसीजर कैस्पिड असेंबली, 4 कैस्पिड असेंबल होता है दोस्तों। ओके, कैस्पिड असेंबली कंटेनिंग वायरल DNA or RNA. Now that capsid assembly with the last process that is of the release, maturation and release ऐसे ही बॉडी से हो सकता है या बडिंग प्रोसेस से भी रिलीज हो जाते हैं दोस्तों वायरसेस। रिलीज होने के द्वारा वे जो वायरस रहते हैं ना, जैसे कि पोलियो वायरस, ये जो हमारे ह्यूमन सेल से रहते हैं ना, उन्हें ब्रेक डाउन करके बाहर निकलते हैं, मेटाबॉलिक प्रॉपर्टीज को डिक्रीज करते हैं। ओके, बॉडी का फंक्शंस को डिक्रीज करके बाहर निकलते हैं। पोलियो वायरस, कोरोना वायरस, ये सभी जो डेंजरस वायरस है ना, जिका वायरस है, मैक्सिमम वायरस विल डिस्ट्रॉय अवर ह्यूमन बॉडीज एक्टिविटी, बट सम वायरसेस वोंट डिस्ट्रॉय द बॉडी एक्टिविटी, they just neutralized from the body. Yes my dear brothers and sisters, these are the question number 8. Describe the steps involved in the replication of the virus. Now what are the main sources of the contamination of the aseptic room? How will you prevent it? It is also very important question asked many times in your examination. Means आपको जैसे कि aseptic room मतलब जैसे लैमिनार फ्लो रखा जाता है ना, असेप्टिक रूम जो स्टेराइलिटी मेंटेन करने के लिए हम रूम जो रखे रहते हैं ना माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, वो कंटेमिनेट कैसे होते हैं और हम उनको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, हाउ कैन वी प्रिवेंट दोज, दैट स्टेप वी हैव टू एक्सप्लेन हियर, हाउ टू प्रिवेंट दैट। सी अ सिंपल क्वेश्चन हियर, जस्ट आई विल एक्सप्लेन, आई रोट हियर, यस। The main sources of contamination of aseptic room are atmosphere, operator, raw materials, equipments, then manufacturing process, then HVAC means heating, ventilation, air conditioning. These systems will be pollute the aseptic room. These are the contamination. Now one by one we will study. Atmosphere. Atmosphere is unable to support microbial growth. Okay, ये मतलब ये सपोर्ट नहीं करता है माइक्रोबियल ग्रोथ को, बट डस्ट पार्टिकल्स इन आउटसाइड एयर में गेट कैरी सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो डस्ट पार्टिकल्स रहता है ना, वो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल ऑर्गेनिजम्स अगर उनमें रहा तो देन दे विल डिस्ट्रॉय द प्रॉपर्टी ऑफ द असेप्टिक रूम, दैट इज द बेसिलस, कोलोस्ट्रिडम, ईस्ट, ये सभी रहते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। ओके, दीज माइक्रोब्स ऑल्सो अकर्स इन द ड्रॉपलेट्स एक्सपेल्ड इनटू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द माउथ, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बाय टॉकिंग, स्नीजिंग या कफिंग, उसके द्वारा भी ये एटमॉस्फेयर के अंदर फैल जाते हैं दोस्तों। आप ये जनरल पॉइंट्स लिखिए, यू राइट द जनरल पॉइंट्स हियर, नो नीड टू राइट वॉट एवर आई हैड रिटन, यू जस्ट राइट द डायरेक्ट जनरल पॉइंट्स। एटमॉस्फेयर कंटेन मेनी
soil particles. Those soil particles, if enters into the aseptic room, they causes the contamination. You write this general. Okay, this contamination where is the aseptic room. Now next one, this is the atmospheric contamination. That operator means we, the skin, hair, and clothing of the operator, means they will cause the, they will these are the sources of the microbial contamination. Microorganism mainly present on the skin, that is in skin they mainly main bacteria are staphylococcus, lympholic yeasts are also present. Okay, then poor personal hygiene can result in the presence of the skin coliforms and other intestinal bacteria like E. coli. Okay, if we are not hygiene means such type of the bacteria will be visible. Then the nasal passages may contain the staphylococcus bacteria, albus, aureus. This above discussion can cause the contamination. Got it? Means this is the operator. By means operator means, now for an example, I am operating the laminar airflow. If I am unhygiene means, if I am diseased means, okay, those products, microorganisms will cause the contamination. These are the simple. The next one is a raw materials. See, raw materials may account a higher proportion of the microbial contamination into the pharmaceutical products. देखिए रॉ मटेरियल, सभी तरह के रॉ मटेरियल्स बेहतरीन नहीं होते, A1 क्वालिटी के नहीं रहते. ओके, सम आर A1 quality, some are A2 quality, means low quality. Now drugs which are prepared from the animal, plant or other natural sources are frequently contaminated with the bacteria, fungi, molds. ओके, जो बैक्टीरिया एनिमल प्रोडक्ट से या प्लांट प्रोडक्ट से नेचुरली प्रिपेयर किया जाता है ना, उन प्रोडक्ट दे विल गेट इजीली कंटेमिनेटेड विद द बैक्टीरिया, मोल्ड्स एंड फंगी. So these are the raw materials which they cause the contamination. Equipment used for the formulation of the pharmaceuticals are also a source of microbial contamination. Means देखिए जैसे कि हम equipments, unhygiene equipments अगर यूज किए तो the equipments which are not washed properly, they may contain soil particles, they may contain some of the microorganisms that can changes the property of your microbiology lab. Manufacturing process, the last step. During manufacturing the process, here what happens, may get contaminated. Okay, then the methods of prevention, how can you prevent this? जैसे कि आपने सभी तरह के मेथड्स देख लिया अभी, प्रिवेंट जैसे कैसे किस तरह से कंटेमिनेट होते हैं सराउंडिंग्स को. अभी क्या हम पढ़ेंगे ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर. किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं. फर्स्ट वन, इन एटमॉस्फेयर. देखिए दोस्तों, माइक्रोबियल काउंट ऑफ एयर ऑन एटमॉस्फेयर मे बी रिड्यूस्ड बाय द केमिकल डिसइंफेक्शन, यूवी लाइट, फिल्ट्रेशन एंड द गैसेस एजेंट. ओके, हम डिसइंफेक्टेंट जैसे कि डेटॉल से हम रोक सकते हैं, फिनॉल से हम रोक सकते हैं, यूवी लाइट पास करके डायरेक्टली, फिल्ट्रेशन करके गैसियस एजेंट से भी हम रोक सकते हैं. देन ऑपरेटर, बिफोर एंटरिंग इनटू द एसेप्टिक रूम एन ऑपरेटर शुड टेक एक्स्ट्रा केयर सच एज अ सैनिटाइजेशन. ओके, अभी तो देखिए कोरोना के टाइम तो कि ये बहुत चल रहा था, जैसे कि आप एरोप्लेन के अंदर जा रहे हैं या किधर भी आप मार्केट के अंदर जा रहे हैं, फर्स्ट आपको होना है. वो किस लिए, वाई यू हैव टू सैनिटाइज मीन्स बिकॉज टू मेंटेन aseptic form. समझ में आ रहा है ना. हाँ, now raw materials here, many deionized water, distilled water and water for injections are commonly used for the preparation of the different pharmaceuticals. Okay, water में treated with UV rays. देखिए दोस्तों, इंजेक्शंस जो प्रिपेयर करते हैं ना, डिस्टिल वाटर देखिए फार्मास्यूटिकल्स के अंदर डिस्टिल वाटर का कॉमन है, अनआयोनाइज्ड वाटर का कॉमन है. ओके, ये जो वाटर प्रिपेयर करने के समय बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंटेमिनेट होने के चांसेस रहते हैं. एट दैट टाइम व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पास द यूवी रेज और जस्ट वी हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर टू deactivate the growth of the microorganisms. Okay, the last one is equipment. See here, these may be sterilized by the heat, gaseous or any other chemicals. दूसरे तरह के केमिकल्स लेके हम स्टेरलाइज कर सकते हैं. हीट स्टेरलाइजेशन भी कर सकते हैं, हॉट ओवर के अंदर रख कर भी हम स्टेरलाइज कर सकते हैं. ओके, मेनी टैंक्स, कंटेनर्स, स्मॉल ऑपरेटर्स, वेजल्स आर स्टेरलाइज्ड बाय द स्टीम अंडर प्रेशर. ऑटोक्लेव के अंदर उनको हम स्टेरलाइज कर सकते हैं दोस्तों. ऑटोक्लेव के अंदर भी हम स्टेरलाइज कर सकते हैं, हॉट एयर ओवन के स्टेरलाइज कर सकते हैं, रेडिएशन स्टेरलाइजेशन भी हम कर सकते हैं. तरह के स्टेरलाइजेशन आप यूज़ कर सकते हैं टू स्टेरलाइज द इक्विपमेंट. Yes, my dear brothers and sisters, this we completed the
main sources of contamination. Now one more very important question, you just go through the question number 10. Explain a principle involved in the microbiological assay of a streptomycin. ओके जैसे कि इधर दो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है. ओके बिफोर स्टार्टिंग दिस 10th question I want to tell you one important thing. See if they ask antibiotic means you write the same what you are writing to the streptomycin. अभी जो मैं आपको बताऊंगा वही लिखिए आप. इफ दे आस्क फॉर द एंटीबायोटिक जैसे कि अमोक्सिलिन कुछ भी पूछे हो एंटीबायोटिक मतलब आप यही लिखिए. इफ दे आस्क स्ट्रेप्टोमाइसिन मीन्स यू राइट दिस ओनली. इफ दे आस्क ई कोली मीन्स यू राइट द सेम व्हाट आई एम राइटिंग. ओके व्हाट आई एम टेलिंग यू नाउ आई विल ओपन दैट आंसर फॉर यू. Let's describe the different methods of a microbial assay of the antibiotics. These are the principles involved in. One is of different methods of a microbial assay of antibiotic. Here it is the determination of the any chemical compound or substances with the use of the microorganism. यहाँ क्या इधर हम क्या करते हैं दोस्तों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हेल्प से ही हम केमिकल कंपाउंड को डिस्क्राइब करते हैं. ओके वी आर डिस्क्राइबिंग द केमिकल कंपाउंड. जैसे कि देखिए अब ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँ माइक्रोबियल ऐसे मतलब क्या. ये मेरे पास एक एंटीबायोटिक सिरप है, एंटीबायोटिक सिरप. नाउ ये क्या है, ये फॉर एन एग्जांपल दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. नाउ आई विल ऐड दिस एंटीबायोटिक सिरप टू दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल डाई मीन्स माई एंटीबायोटिक इज गुड. मेरा जो एंटीबायोटिक है ना बेहतरीन काम करने वाला है. हाँ मैं शाबाशी दूंगा इसे और मैं इसको क्या करूँगा इंडियन गवर्नमेंट के साथ शेयर करके इससे मैं मुनाफा कमाऊँगा. समझ रहे हो ना. हाँ ये अगर मेरा एंटीबायोटिक गुड रहा तो. अगर मेरा एंटीबायोटिक गुड नहीं रहा तो इट डजेंट इनहिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तभी मेरा और फार्मेसी का रिश्ता खत्म हो जाएगा इधर. जैसे कि एग्जांपल के तौर पर वाई बिकॉज द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट इज मोर ईयर ऑफ द बैक्टीरिया. किल करेंगे तो मेरा प्रोडक्ट लेंगे ना, अगर किल ही नहीं करेंगे तो मेरा प्रोडक्ट क्यों लिया जाएगा मार्केट में. हाँ मुझे भिखारी कर देंगे इधर लोग. हाँ एक्सेप्ट यस. Here the same here microbiology brother it is the microbiology subject. Microbiology yes you can if you now join the video means no. Now see it is an important to know the pharmacokinetics of the drug in animals. Very important है दोस्तों एक्शन समझने के लिए ड्रग का. then they are less reproducible है. Microbial assay of antibiotics or microbial assay of the streptomycin और E. coli और the principle सभी आप एक ही इसके अंदर लिख सकते हैं दोस्तों. The inhibition of the microbial growth with standardized conditions may be utilized for the demonstrating the therapeutic efficiency of the antibiotic. मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था अगर आपका थेरेपेटिक इफेक्ट अच्छा है एंटीबायोटिक का तब आप डीएक्टिवेट कर सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को. ऐसे मेथड्स बेसिकली दो मेथड्स है. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स. मेथड ए एंड okay sir social pharmacy which day okay yes method A and method B brother I will message you afterwards. Cup plate or cylinder plate method, the method is a tube assay method. Two important methods. Cup plate method is also known as cylinder plate, tube plate method. These are the two important methods here. The first method is the cup plate method. Let's discuss this cup plate method. It is also known as the cylinder plate method. इसे cylinder plate method भी कहा जाता है दोस्तों. This method depends on the diffusion of an antibiotics from the vertical cavity through the solidified agar layer in the petri plate. देखिए बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक्सप्लेन करूँगा मैं, टेंशन ना लीजिए. ये समझ में आ गया आपको. इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिलेंडर प्लेट मेथड. नाउ ये जो मेथड है ना डिपेंड्स ऑन द डिफ्यूजन ऑफ द एंटीबायोटिक्स फ्रॉम द वर्टिकल कैविटी थ्रू द सॉलिडिफाइड अगार लेयर इन द पेट्री प्लेट. पेट्री प्लेट अगार मीडियम के अंदर ही हमको ये एंटीबायोटिक को डालना है. ये एंटीबायोटिक किस तरह से ऐड करता है विद द डिफ्यूजन प्रिंसिपल हायर टू द लोअर. The growth of the test microorganisms is inhibited entirely in the circular area. In the circular area, cavity is prepared in the sterile agar media for the assay of antibiotic. Now I will explain you. See here. A liquid assay media is inoculated by suspension of the test microorganisms
liquid assay media is inoculated by suspension of a test microorganism. The inoculated media is directly poured into the sterile petri plate. That liquid media is directly where we have to pour the petri plates. petri plates के अंदर उस liquid media को हमें pour करना है. वो liquid media क्या constitutes the microorganisms. microorganisms को हमें इस पर डाल देना है. The inoculated media is directly poured into the sterile petri plates. ठीक है, डाल दिया भाई. नेक्स्ट क्या करना है हमें? Then spread the text culture on the surface of the microorganisms. मतलब then spread the test culture on the surface of the microorganisms. देखिए, जो हमें टेस्ट करना है ना, वो हमें क्या करना है, इधर पोर करना है ना. फॉर एग्जाम्पल ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने पेट्री प्लेट्स के ऊपर डाल दिया. नाउ दिस इज द टेस्ट मतलब हमारा एंटीबायोटिक को टेस्ट करना है हमें. ये एंटीबायोटिक्स को हम क्या करना है, पोर करना है. उसी पेट्री प्लेट्स के ऊपर हमें पोर करना है. देन एटलीस्ट द एंटीबायोटिक इज एडेड इनटू द कैविटी इज प्रिपेयर्ड इनटू सॉलिड मीडियम. अगर इस तरह से नहीं हो पाया तो आपको क्या करना है, एंटीबायोटिक्स को कैविटीज़ के अंदर डालना है. कैविटीज़ के अंदर जो होल्स रहता है ना, उनके अंदर आपको पोर कर देना है. देन द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन एडेड टू ईच कैविटी मस्ट बी यूनिफॉर्म एंड सफिशिएंट टू फिल द होल्स. ठीक है दोस्तों, ये जो आप ऐड करते हो ना एंटीबायोटिक को, दैट एडेड एंटीबायोटिक ये किस तरह से रहना है, दैट शुड बी एनक्लोज योर होल. ये जो आपका होल है ना, कैविटी होल, जैसे कि आप बना रहे थे किसके अंदर, ये पेट्री प्लेट्स के अंदर, वो कैविटीज फुलफिल होना है किससे, विद द एंटीबायोटिक. ओके, विद द एंटीबायोटिक. देन द प्लेट्स केप्ट असाइड फॉर 1 to 2 hours एट द रूम टेम्परेचर. जो ये कैविटी प्लेट्स है ना, ये 1 से 2 घंटे को हम असाइड रखना है, मतलब असेप्टिक कंडीशन के अंदर इनको रखना है. आफ्टर दैट द प्लेट्स आर इंक्यूबेटेड फॉर 18 to 24 hours एट सर्टेन टेम्परेचर. एक दिन के लिए हमको रखना है दोस्तों. देन द होल्स आर आइडेंटिफाइड ओवर द पेट्री प्लेट्स. ओके, दैट इज अ जोन ऑफ इनहिबिशन. देखिए आपको बताता हूँ मैं दोस्तों, सिंपल आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं. देखिए ये जो है ना, ये पेट्री प्लेट्स है. पेट्री प्लेट्स के अंदर होल्स है. ओके, पेट्री प्लेट्स के अंदर पहले ही हमने क्या ऐड किया था, वी हैव एडेड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऐड करते हैं. नाउ ये जो होल्स आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, that 5 holes should be filled with the test antibiotic. एंटीबायोटिक जो हमें टेस्ट करना है उससे हम इसको भर देंगे. नाउ व्हाट हैपेंस, एक दिन के बाद आफ्टर 24 आवर्स ये जो होल्स रहते हैं ना दोस्तों, ये जो होल्स रहते हैं ना, दीज गेट एक्सटेंडेड. फर्स्ट वन ऐसा हो जाता है, ये ऐसा हो जाता है. दे सराउंडेड द एरिया. अतराफ का ये एरिया जो रहता है ना, वो सराउंड करते हैं. That surrounding is known as zone of inhibition. Zone of inhibition. समझ में आ रहा है आपको? Zone of inhibition मतलब देखिए, जैसे ये आपने एंटीबायोटिक को एक सिंगल कैविटी लेकर आपको दिखाता हूँ. एक कैविटी के अंदर क्या है, एंटीबायोटिक जो आपको टेस्ट करना है. ओके, इधर जो एंटीबायोटिक जो होल के जो साइड में जो है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, होल के जो साइड में है ना, ये कल्चर मीडिया. दैट कल्चर मीडिया कंटेन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. Now if that antibiotic after 24 hours if it extends, मतलब ये होल अगर extend हो गया, means it inhibits the this much area of the zone of inhibition. okay, this much area इधर से लेके इधर तक माइक्रोबियल ग्रोथ को स्टॉप करता है. इंशाल्लाह दोस्त जा रहा हूँ मैं. स्टॉप द माइक्रोबियल. यही इधर एक्सप्लेन किया गया है दोस्तों. देखिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एंटीबायोटिक एज यूजुअल हाउ इट इज इंक्रीजेस. नाउ डायमीटर ऑफ द जोन ऑफ इनहिबिशन इंक्रीज होता है. मतलब जो एंटीबायोटिक लिया जाता है ना इन होल्स के अंदर, अगर इनका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया, जोन ऑफ इनहिबिशन मतलब ये जो जोन रहता है ना, वो जोन इंक्रीज होता है दोस्तों. इसी तरह से आपको एक्सप्लेन करना है. समझ में आ गया ना. नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट इज द, हाँ एक ही मेथड हमको एक्सप्लेन करना है, दैट इज द सिलेंडर और द प्लेट मेथड. सिलेंडर और द कप प्लेट मेथड. टेक्स्ट ट्यूब मेथड हम काफ़ी है, 5 मार्क्स को पूछा तो एक मेथड आप एक्सप्लेन कर सकते हैं दोस्तों. यस माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ
The last question in our June question paper is write briefly जनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेल कल्चर लेबोरेटरी। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो सेल कल्चर हम किया जाता है ना, ग्रोथ करते हैं ना दोस्तों, जनरल रिक्वायरमेंट्स हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत रहती है उस पर आपको लिखना है दोस्तों। जनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सेल कल्चर। सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है और आंसर भी उतना ही आसान है दोस्तों। देखिए जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए हमें। शेयर इंस्ट्रूमेंट्स प्ले वाइटल रोल इन द सेल कल्चर, ये आपको फर्स्ट बेसिक लिख डालना है। यस, इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोर्स इट प्लेज अ वाइटल रोल टू स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ एनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लेबोरेटरी रिक्वायरमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये कौन सा है वो? द फर्स्ट वन इज अ लैमिनार एयर फ्लो, वेरी गुड, टू मेंटेन द असेप्टिक रूम। लैमिनार एयर फ्लो इट हेल्प्स टू मेंटेन द स्टेराइल कंडीशन इन द सराउंडिंग्स। अतराफ में स्टेराइल कंडीशन रखने के लिए लैमिनार एयर फ्लो का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। देन इंक्यूबेटर, इट हेल्प्स फॉर द इंक्यूबेशन ऑफ द सेल, इंक्यूब्यूट करने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए सेल्स को इंक्यूब्यूटर का यूज़ किया जाता है। देन वाटर बाथ, वार्म द रिएजेंट्स को वार्म करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है सेल कल्चर के अंदर। यही आपको लिखना है, यही सब। हाँ, अगर आपको ये पता भी नहीं हो रहा है, एग्जाम में आपको नहीं पता चल रहा है, मतलब आप माइक्रोबायोलॉजी लैब गए हो ना दोस्तों, जिन जिन इक्विपमेंट्स को आपने देखा है उन इक्विपमेंट्स को आप लिख डाले। यू राइट दोज इक्विपमेंट्स विच यू हैव सॉन इन योर माइक्रोबायोलॉजी लैब। ऑटो फ्लो आपको आप देखा ही होगा, स्टीम आप देखा ही होगा, कुकर आप देखा ही होगा। यू राइट दोज ऑल। रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज हेल्प्स इन सेपरेशन ऑफ द सेल्स को। रेफ्रिजरेटर एंड फ्रीजर हेल्प्स टू प्रिजर्व और स्टोरेज के खातिर हम यूज़ करते हैं दोस्तों। देन हेमोसाइटोमीटर सेल काउंट के लिए यूज़ करते हैं। माइक्रोस्कोप ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेल्स। लिक्विड नाइट्रोजन क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ द सेल्स, प्रिजर्व करने के लिए। -196 डिग्री सेल्सियस के अंदर जो रखा जाता है ना, हाँ वो लिक्विड नाइट्रोजन है, क्रायो प्रिजर्वेशन। देन स्टेलाइजर मीन्स ऑटोक्लेव, जो स्टेरलाइजेशन टेक्निक्स पर हम यूज़ किया जाता है, दैट इज स्टेरलाइजर्स, ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन टू मेंटेन द स्टेरिलिटी। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस मेजरिंग ऑफ रिएजेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। देन ट्रांसफरिंग लूप हम इस्तेमाल करते हैं टू ट्रांसफर द गिवन सैंपल। ओके, यस। देन स्लाइड्स, डिसइनफेक्टेंट्स लाइक अल्कोहल यूज़ करते हैं, एथेनॉल यूज़ करते हैं। बंसन फ्लेम्स और बर्नर्स टू डीएक्टिवेट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और टू हीट फिक्स द ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमने ग्राम स्टेनिंग में पढ़ा था। पिपेट का नॉर्मल इस्तेमाल होता है। देन न्यूबॉर्न काउंटिंग चेम्बर स्लाइड, ओके, डब्ल्यूबीसी को स्टडी करने के लिए, प्लेटलेट्स को स्टडी करने के लिए। ओके, न्यूबॉर्न काउंटिंग चेम्बर स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, these we have completed the June 2019 question paper. Only one question we have left, that is 11th question. 11th question, how will you detect microbial contamination in pharmaceuticals? Inshallah that question will be discussed in the next question paper. Don't miss the tomorrow's lecture. Tomorrow we will start the January 2019 question paper of microbiology. We will start with the 10 marks and we will complete the 5 marks. Okay, now while solving the second question paper you will really know what's the value of solving the question papers. आपको जब क्वेश्चन पेपर आप सेकेंड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे ना, तभी आपको पता चलेगा वैल्यू क्या है क्वेश्चन पेपर की। ओके दोस्तों, इसलिए कल की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह कल भी क्लास करूँगा, ज्वाइन कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स जॉइन फार्मेसी, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।